Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I wish you'll be enjoying the best of health. I welcome you in my class. There is an English for grade 5 and we are learning unit number 12, Invention of Paper. So yes, my dear teachers, this is lesson plan and I have divided this lesson according to these lectures. Okay, it's up to you if you want to modify it according to your convenience, so you can. So our first lecture would be lecture number 1 under the title of grammar. We will learn about simple future tense and use of a and the, and we will cover page 113. And in this way our students learning outcomes will be: use tense simple future previously learned in speech and writing, choose between a or an and the before words that start with mute consonant letters. And lecture number 2 under the title of grammar, we will learn about subject verb agreement and we will cover up page number 113, my dear students and my dear teachers. And our students learning outcomes will be: demonstrate the use of subject verb agreement according to person and numbers, recognize and use simple SVO pattern, sentences with direct and indirect objects. So yes, my dear teachers, under the title of comprehension skills, lecture number 3, we will learn about comprehension skills and we will cover up page 110, 111 and 112. And in this way we will cover up our SLOs, apply while reading, strategies to interact with the text, to identify facts in the text as indicated through words day, date, place, etc. Use critical thinking to respond to the text post reading by applying word knowledge and on opinion to the text read. So these SLOs will be. So yes, my dear teachers, lecture number 4 will be under the title of reading. We will learn about instructions and directions and we will cover up page number 114, question number 6. Okay, so my dear teachers and my dear students, and its learning outcomes will be: use appropriate expressions in conversations to give and respond to simple instructions and directions. Relate their feelings and experiences to what is read. Okay, and the next lecture, lecture number 5, last lecture will be, and we will learn under the title of writing, we will learn about mind mapping and we will cover up page 115, question number 7. Okay, my dear teachers and my dear students, and its SLO will be: identify and utilize effective study skills, brainstorming for ideas, using illustrations, note-taking and making a mind map. Write a guided paragraph by using ideas gathered and organized through various strategies. So yes, my dear teachers and my dear students, we will cover up all our SLOs according to these lesson plan and according to these lectures. Okay, so open your book, my dear students, unit number 12, page number 110. So we are going to start now. You have opened. Good. Our title is Invention of Paper. मतलब क्या है इसका बेटा? इन्वेंशन ऑफ पेपर मीन्स कागज की इजाद, कागज कैसे बना, इसकी इजाद कैसे हुई, तो आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं. सो द थीम ऑफ दिस लेसन इज टेक्नोलॉजी एंड द सब थीम इट इज हेल्पिंग सपोर्टिंग अमेजिंग इन्वेंशन. ओके, टेक्नोलॉजी मीन्स इस दुनिया में जितना भी तरक्यात काम हुआ है, तरक्याती और डे बाय डे हो रहा है, तो सारा टेक्नोलॉजी में आता है, स्पेशली मशीनरी. ओके, जो भी न्यू चीज़ जो ईजाद होती है, और सब थीम इसे अमेजिंग इन्वेंशंस, हैरान कुन ईजादात. और हैरान कुन ही है, इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी बन रही हैं, अगर पहले ज़माने का इंसान अगर यहाँ आ जाए बेटा तो हैरान रह जाए, इतनी सहूलियात इंसान के लिए बन गई हैं. तो आज हम इस सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या होगा? इन्वेंशन ऑफ पेपर, के कागज कैसे बना, कैसे इजाद हुआ. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 111, फर्स्ट पैराग्राफ इज देयर. Before paper was invented in the ancient time, people used to carry information in their brains. They used to write on bones, leaves, bamboo tablets or animal skins. That made assessing these writings messy and tedious. तो पहले पैराग्राफ में छोटा सा पैराग्राफ है बेटा, उसमें क्या बताया जा रहा है कि invented before the paper of
इन्वेंशन ऑफ पेपर मीन्स कागज के बनने से पहले क्या करते थे लोग, सारी इंफॉर्मेशन जो उनकी जरूरी होती थी वो अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में जमा करते थे। और इसके अलावा अगर लिखनी भी पड़ जाती तो वो किस चीज पे लिखते थे, जानवरों की खालों पे, पत्तों पे लिखते, या दरख्तों की छालों पे, इन चीजों पे, वो चीजें हड्डियों पे भी लिख के इंफॉर्मेशन रखते, लेकिन वो बहुत ज्यादा लाइक टीडियस एंड मेसी मीन्स पढ़ने के काबिल ना हो तो अजीब सा लगता, तो इस वे में लोग अपनी इंफॉर्मेशन सेव करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए। There was, however, one Chinese man in the Han Dynasty in 105 AD who changed the way people wrote and read forever. The legend says that the man named Kailun once saw a wasp knitting its nest. It was then that an idea struck him. He took the bamboo fibers, added them to water and pounded them with a wooden tool. So yes, second paragraph में क्या बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि कागज की इजाद कहाँ से शुरू हुई, चाइना से शुरू हुई। चाइनीज था एक बंदा जो जिसने 105 में क्या किया, नाम क्या था उसका नाम था काइलुन। ओके, उसने देखा कि एक भेड़ अपना नेट बुन रहा है जिसमें वो रहता है भेड़, तो वो बुन रहा है, तो उसे देख के ही उससे क्या हुआ, एक ख्याल आया, तो उसने फौरन से क्या किया, बैम्बू फाइबर्स को लिया और उनको पानी में डाल के और उसे अच्छी तरह एक लकड़ी के टूल से उसे पॉन्ड किया, मींस मिलाया, मिक्स किया। पहला स्टेप उसने ये किया। नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर थ्रूली इंटरवोवन फाइबर्स ही poured the whole mixture on a flat woven cloth, letting the water drain out. He let the wet mixture dry up in the sunlight. After a few hours, the world's first paper was born. Kailun presented his paper making process to the Chinese emperor and praised his ability. It was easy to make, the writers were happy, and of course, it was lightweight. Although the Chinese kept the mystery of paper making for a long time, the secret finally started spreading after the defeat of the Chinese Tang army in 751 AD. Yes, so my dear students, इस पैराग्राफ में सारी वो बताई गई है कि जैसे ही उसने वो पल्प सारा एक कपड़े पे उंडेल दिया, धूप में रख दिया, जैसे ही उसके पानी खुश्क हुआ तो वो एक पेपर बन गया। तो उसने अपना ये पेपर अपने बादशाह को दिखाया जो उस वक्त चाइना का एम्परर था, शहनशाह था, उसे दिखाया, तो उसने उसकी एबिलिटी की भी तारीफ की। इस तरह एक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई और राइटर जो थे वो भी खुश हो गए जिन्होंने चीज़ें लिखनी होती थी कि एक पेपर पे वो चीज़ें उन्होंने लिखना शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने ये पेपर मेकिंग का सारा प्रोसीजर एक राज के तौर पे रखा, छुपा दिया कि लोग ना जान जाएं, वो बनाए ना, हमारे पास ही ये राज रहे। लेकिन ये राज कब तक आया हुआ, वो ये था जब चाइनीज आर्मी को शिकस्त हुई। ओके, इन 751 एडी में 751 में जब चाइनीज आर्मी को शिकस्त हुई तो ये राज भी स्प्रेड होना शुरू हो गया। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ। बाय द एंड ऑफ द 12th century, a significant part of the world was using Kailun's method of manufacturing paper. Over time, paper makers began to use other materials. Their product, including bamboo, mulberry, and different types of tree bark. Later, this paragraph we have completed. So, at the end, कब ये जो मिस्ट्री है, जो पेपर मेकिंग का राज है, 12वीं सदी में, 12th century, 12वीं सदी में ये क्या हुई, तकरीबन दुनिया का अच्छा खासा हिस्सा जान चुका था उस मेथड से, जिस मेथड से काइलन्स ने अपना पेपर बनाया, कागज बनाया। तो वो यही जो मेथड है वो यूज करने लगे और डिफरेंट चीजें यूज करने लगे, लाइक बैम्बू ट्रीज, बांस की लकड़ियां यूज करने लगे, मलबरी ट्रीज, शहतूत की लकड़ियां यूज करने लगे, एंड टाइप्स ऑफ ट्री बार्क, और मुख्तलिफ किस्म की छालें, दरख्तों की छाल जो है ना वो यूज करके पेपर बनाने लगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप ये जो सारा प्रोसीजर है वो आउट होता गया, पूरे वर्ल्ड में आउट होता गया। लेटर द डिमांड फॉर पेपर इंक्रीज्ड एंड water-powered paper mills started producing paper. This paper was cheaper than the traditional writing material such as animal skin and bones. Then two men from different countries, Friedrich Gottlob Keller and Charles Finerty, tried wood fiber. Okay, उसके बाद फिर क्या हुआ, जब
पेपर की, कागज की डिमांड बढ़ने लगी डे बाय डे। जैसे ही पता चला तो मिल्स बनना शुरू हो गई और उन मिल्स में ये पेपर बनने लगा, कागज बनना तैयार हो गया। तो ये कागज क्या था, हल्का भी था, वेट में भी हल्का था और सस्ता भी था उन चीजों से जिन पे ये कदीम जमाने में चीजें लिखी जाती थी, तो उनसे ये सस्ता भी था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, इसमें मजीद डेवलपमेंट, तरक्की कैसी हुई। द टू मेन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, दो मुख्तलिफ बरे-आज़मों के दो लोगों ने क्या ट्राई की, वुड फाइबर, लकड़ी के रेशे ट्राई किए कि देखते हैं कि उससे कैसा पेपर बनता है। तो ये नेक्स्ट था। The mills started replacing this discovery to wood fiber in light of this new discovery. And a new era of paper making began in mid 1844, and by the end of the 19th century, all the paper manufacturers in the West were converting wood to paper. Books were written and read, paper money was printed, even the gifts were wrapped in paper. Global toilet paper demand uses nearly 30,000 trees every day. That is 10 million trees, my dear students, 10 million trees a year. Almost half of worldwide wood harvest becomes paper. Think about just how many trees we could save if we all went paperless. Okay? अब इस लास्ट पैराग्राफ में हमें क्या बताया जा रहा है बेटा, ये बताया जा रहा है कि 1844 तक उसके वस्त में, मिड 1844 उसके वस्त में, दरमियान में, तो उसके दरमियान तक पहुंचते पहुंचते पूरी दुनिया में ये न्यू डिस्कवरी जो है ना, इसकी खबर फैल गई और लोगों ने पेपर बनाना शुरू किया। और लोगों ने पेपर किससे, वुड फाइबर से, मींस लकड़ी से पेपर बनाना शुरू किया, दरख्तों से पेपर बनाना शुरू किया। तो कितने दरख्त लगते हैं, 30,000 ट्रीज एवरी डे, 30,000 दरख्त रोजाना, और 10 मिलियन ट्रीज अ ईयर, और पूरे साल में 10 मिलियन दरख्त जो है ना ये पेपर मेकिंग में कंज्यूम हो रहे हैं बेटा। दरख्त का कटाव, आप जानते हो ना कि दरख्तों का काटना कितना नुकसानदेह है। एक तो वो जो जंगली जानवर जो जंगलात में रहते हैं उनके लिए उनकी रिहाइश का कोई वो नहीं है कि जहां वो रह सकें, जंगलात ही उनकी पनाहगाह हैं जो कि कटते जा रहे हैं फॉर द यूज ऑफ पेपर, ड्यू टू पेपर। और उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग का भी इशू बन रहा है डे बाय डे, क्योंकि हमारी जमीन इसी वजह से ही आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ जा रही है, डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। ये माइंड में रखिए, डिस्ट्रॉय हो रही है, तो हमने ही इसे बचाना है बेटा। तो अगर यही पेपर रिसाइकल कर दिया जाए, जो वेस्टिंग पेपर है तो इससे रिसाइकल कर दिया जाए, तो हम अपना क्या कर सकते हैं, अपनी दुनिया भी बचा सकते हैं और अपने दरख्त भी बचा सकते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं, जिनकी वजह से ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं हमें, तो हम इनसे सांस लेते हैं। तो बी केयरफुल। ओके, ये चैप्टर आज हमने कंप्लीट किया, तो कल हम इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 1। सो ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपने गॉट किया कि आज इस सारे उसमें कैसे पेपर की इजाद हुई और कैसे स्टेप बाय स्टेप ये तरक्की की तरफ आया। ओके, और इसके इतना ज्यादा पेपर यूज करने के नुकसानात भी हमारे क्या हो रहे हैं वो भी। ओके, तो थिंक अबाउट इट। सो स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, सी यू सून, अल्लाह हाफिज।